Good morning, children. Today we are going to start a new topic, new chapter, that is nouns, common, proper, collective. Okay, so open page number 31 of your books. Students, you know that nouns are naming words. A noun is the name of a person, a place, an animal, or a thing. In the last chapter which we did, also you have studied nouns, right? We did parts of speech. So the first and the foremost part of the speech is also noun. Okay, what are nouns? In short, we call them naming words. We call them naming words. So naming words are nouns. Name of person, name of place, name of animal, or name of thing is noun. Okay, let's read some examples. Ram and his cat are playing on the bed in Ram's room. Here Ram is the name of a person. Ram क्या है? Person का नाम, इसलिए वो noun है. Cat is the name of an animal, इसलिए cat noun है. Bed is the name of a thing, इसलिए वो noun है. And room is the name of a place, इसलिए वो भी noun है. So एक ही sentence में आपको person, place, animal, thing चारों मिल गए. It's a good example, right? Now people are waiting for train at the railway station. Here what is people? People is the name of the group of person. People मतलब खूब सारे person. So group of person है, उनको people बोलते हैं. Train is the name of a thing. Train एक चीज़ है. और railway station क्या है? Place है, जगह. Right? So now you know that what are nouns. Nouns are naming words. Person, place, animal, thing के नाम को क्या बोलते हैं? Noun. So this is the first exercise of the chapter. That is, circle the nouns in the following sentences. Now you have to read these sentences carefully. जहाँ पे भी किसी person का नाम है, place का या thing का या animal का नाम है, उसको आपने circle कर देना है. Because question is circle the nouns. उसको आपने circle कर देना है. That is, आपको nouns को circle करना है. Okay? So you are going to do this exercise on your own. I'll give you some time for this. Okay? After that, I'll give you a checklist. I'll give you the answers to check your exercise. But do it yourself. I am not going to tell you. Okay? Because you are doing nouns since class 1. Now moving ahead. Okay, there are few more examples. Okay, 10 sentences are there. These are not examples. These are 10 sentences of your exercise. Okay. Now, you know that common nouns are the names given to person, place, animal or thing of the same kind. Common noun मतलब एक ही kind को जो नाम, जैसे सारे boys हैं, रवि, राजू, राकेश, आशीष, अजय, ये सब किसके नाम है? Boy के. तो आप बोलो बॉयज़, यानी ये सब उसमें आ गए. तो बॉयज़ इज़ अ कॉमन वर्ड फॉर इन सारे नामों के लिए. और ये नाम अलग अलग से क्या है? किसी एक पर्सन के नाम है, तो ये क्या हो गए? प्रॉपर नाउन. तो जब आप एक ग्रुप के लिए बात करते हो, खूब सारे लोगों को, एक ही तरीके के लोगों के लिए एक नाम होता है. जैसे प्रयागराज, न्यू दिल्ली, जयपुर, ये सब क्या है? लखनऊ, कानपुर, किसके नाम है? सिटीज़ के नाम है. यस, तो इन सब को हम क्या बोलते हैं? सिटीज़. तो कॉमन नेम इनके लिए क्या है? सिटी. और अलग अलग से ये जो नाम ले रहे हो आप, ये एक सिटी का नाम ले रहे हो, एक स्पेसिफिक सिटी का नाम बता रहे हो आप. स्पेशल नेम है. प्रयागराज एक ही है, ये नहीं कि दिल्ली को भी प्रयागराज बोलेंगे और प्रयागराज को भी प्रयागराज तो बोलेंगे. ऐसे नहीं होता ना. प्रयागराज मतलब आपको पता है कि ये प्लेस कहाँ है. राइट? सो इट इज़ डिफरेंट. किसी चीज़ का जो स्पेसिफिक नाम होता है उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं. और अगर वो कॉमन में सबके लिए यूज़ होती है दैट इज़
कॉमन नाउन। जैसे सिटी है तो वो कॉमन नाउन है, उसी पे न्यू दिल्ली हो गई तो वो प्रॉपर नाउन हो गई, है तो वो भी सिटी का नाम, और वो सिटी का नेम है। ओके। डे, अभी डे कौन सा डे है आज ये नहीं पता, हम बोल रहे हैं टुडे डे। डे मीन्स इट कैन बी एनी डे, सो कॉमन नेम है डे सारे डेज के लिए। ओके, सो इट इज़ अ कॉमन नाउन। अगर हम बोलते ट्यूसडे, इसका मतलब ट्यूसडे क्या है आपका प्रॉपर नाउन। सी, प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेशल नेम्स गिवन टू द पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल्स। पेट्स और एनिमल्स का नाम कैसे होगा? एनिमल्स का नाम ऐसे होता है कि स्टोरीज़ में पेट्स के नेम होते हैं, या आप भी अगर घर पे पेट्स रखते हो तो उसमें नेम होते हैं, राइट? यू गिव देम। आप तो ये तो नहीं बोलते कि डॉग है मेरे पास, आप बोलते हो, हाँ आप ये बोलोगे कि आई हैव अ डॉग, पेट डॉग, बट इट्स नेम इज़ बाशा, ठीक है? या जो भी आपने अपने डॉग का नेम रखा हुआ है, राइट? सो उनको भी आप अपने पेट्स को या स्टोरी में कैरेक्टर्स को नेम्स देते हैं, तो इट इज़ प्रॉपर नाउन। So for more clarity, there is a poem for proper noun. See, let's read. Proper nouns are special. Every name or surname is a proper noun. So put a capital letter down. जितने भी names या surnames होते हैं, सारे name और surnames proper noun होते हैं, इसलिए उसमें हमें क्या करना है? First letter capital. आपका जो भी नेम हो, आप उसका नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हो और सरनेम का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। एग्जाम्पल, प्रियांशु शर्मा, तो प्रियांशु का पी भी कैपिटल होगा, शर्मा का एस भी कैपिटल होगा, राइट? मंथ्स एंड डेज आर नाइस इनफ, बट कैपिटल लेटर्स मेक देम बिग स्टफ। जो भी मंथ के नेम्स होते हैं या डेज के नेम्स होते हैं, इसमें भी हम फर्स्ट लेटर को कैपिटल करते हैं, बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ द मंथ एंड नेम ऑफ द डे, सो इट इज़ अ प्रॉपर नाउन। सो जितने प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो डेज, ये एक पोएम है, सो दे हैव गिवन अ राइम कि इतने अच्छे हैं कि इनको हम कैपिटल में लिखते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये अच्छे हैं इसलिए कैपिटल में लिखते हैं। ये इसलिए पोएम दी है कि जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज़, आपको याद हो जाए कि जितने भी नेम्स होते हैं, डेज के नेम, किसी भी चीज़ का नाम जो होता है, दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन। अगर उसका कॉमन नेम है, यानी उस सारी, जैसे सारे जितने भी डॉग्स हैं उनको हम डॉग बोलते हैं, जितने भी 4 वैसे होते, और उसी में उनका नाम भी होता है अलग अलग। जैसे आपके पास भी डॉग है, आपकी फ्रेंड के पास भी डॉग है, तो दोनों के पास डॉग है, इट्स अ कॉमन नाउन। आपके डॉग का नाम बाशा है, अगर आप बाशा बोलोगे यानी आप अपने डॉग के बारे में बात कर रहे हो, और उसके डॉग का नाम अगर क्रिस है या जैक है तो वो अपने डॉग के बारे में बात कर रही है, राइट? सो दोनों के डॉग्स हैं, दोनों सिर्फ डॉग बोलोगे तो कॉमन एक डॉग के लिए बात कर रहे हो, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। एग्जाम्पल ऑफ कॉमन नाउन, सी आई विल रीड वंस, बार बार कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन पे जा रहे हैं तो आई विल जस्ट रीड वंस। मैन, सिटी, डे, फेस्टिवल, बुक, फोन, एक्सेट्रा। मैन अभी प्रॉपर नाउन में उसी के कंपैरेटिवली दिया हुआ है। कैलाश सत्यार्थी, मैन मतलब बहुत कोई भी मैन हो सकता है। कैलाश सत्यार्थी मीन्स हम उसी एक पर्टिकुलर मैन के बारे में बात करें, उसका किसी का नाम है। सिटी, कोई भी सिटी, कॉमन नाउन, कॉमन है। रोहतक, हम रोहतक सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। डे, एनी डे। ट्यूसडे, स्पेसिफिक ट्यूसडे की बात हो रही है, स्पेशल है, एक पर्टिकुलर डे के बारे में बोल रही है, ये डे का नेम है। फेस्टिवल, फेस्टिवल्स आर गुड, या वी शुड एंजॉय ऑल द फेस्टिवल्स। कॉमन, हम सब फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे हैं। फिर पोंगल, हम एक प्रॉपर एक पोंगल एक फेस्टिवल का नाम है। बुक, कोई भी बुक हो सकती है। द बाइबल, बाइबल ऐसे तो द रामायण, द बाइबल, द गीता, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, बहुत सारी हैं, पर
आप एक फिक्स, आप कोई भी बुक के बारे में नहीं बोल रहे हो, आप बाइबल के बारे में बात कर रहे हो। फ़ोन, कोई भी फ़ोन, इट कैन बी सैमसंग, इट कैन बी ब्लैकबेरी, कोई भी फ़ोन हो सकता है, इट कैन बी आईफोन। अब एग्जाम्पल में देखो ब्लैकबेरी, आप ब्लैकबेरी फ़ोन के बारे में बात करो। ओके, सो where were we? I've explained you the two lines. Now coming next, coming down to towns. States and towns across this land need capital letters to make them grand. So states और towns जितने भी होते हैं उन सबको भी हम capital में लिखते हैं, right? Titles of books are important in every way. जितने भी books के title होते हैं उनको हम कैपिटल में लिखते हैं, उनके सारे वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखते हैं. बट एक्सपेक्ट में बी वर्ड्स लाइक द एंड और अ अगर आपकी बुक के टाइटल में आएंगे या चैप्टर में भी आते हैं बीच में तो वो स्मॉल होते हैं. चैप्टर के नेम में भी अगर द एंड और अ बीच में आएगा तो आप उसको स्मॉल में लिखते हैं. अगर बिगिनिंग में होता है, फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट वर्ड है आपका द, जैसे द इन ऑस्पिशियस जस्टिस, तो द का टी कैपिटल होगा उसमें. ओके, इफ़ द नेम ऑफ द चैप्टर इज बॉय इन द यार्ड, सो इसमें बॉय इन द, इस द जो बीच में द आ रहा है इसका टी स्मॉल होगा. ओके, स्ट्रीट नेम्स शुड नॉट बी फॉरगॉटन. स्ट्रीट के नेम्स को मत भूलो बिकॉज वो भी कैपिटल लेटर में होते हैं. कैपिटल लेटर इज़ द वे टू स्टार्ट. इन सारी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सबसे पहले कैपिटल लेटर. हम कैपिटल लेटर, इनके वर्ड्स, ये जो वर्ड्स होते हैं इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं. सो बेसिकली ऑल द प्रॉपर नाउन्स हैव फर्स्ट लेटर कैपिटल. Okay, moving ahead, these are few examples of common noun and proper noun. People, okay, people means can be any, किसी भी पर्सन के बारे में बात कर सकते हैं हम. एग्जाम्पल अन्ना हज़ारे, भगत सिंह, आर के नारायण. अब वो पर्सन का नाम हो गया, सो वो प्रॉपर नाउन हो गया. मैन भी हो सकता है इसमें, पीपल भी हो सकता है, राइट. देन सिटीज़ एंड स्टेट्स. अभी सिटीज़ और स्टेट्स मिक्स है, पर प्रॉपर नाउन मतलब उनका नाम. कॉमन नाउन इज सिटीज़ एंड स्टेट्स, बट प्रॉपर नाउन फॉर सिटीज़ एंड स्टेट्स इज नोएडा, हरियाणा, तमिलनाडु. कंट्रीज, कंट्रीज इज अ कॉमन नाउन. कोई भी कंट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट कंट्रीज एज अ क्लास. बट प्रॉपर नाउन Nepal, Bhutan, Iraq, South Korea, not to forget your own country, India, right? Now the next example is river, seas and oceans. These are your common nouns. Proper noun for them: Godavari, Red Sea, Pacific Ocean, Ganga, Yamuna. There are many. Kaveri, etc. The buildings. Buildings are common noun and name of the building will be proper noun. Parliament House, Victoria Memorial, Sun Temple, Red Fort. Okay. Things. Things is common noun, but name of things is proper noun. Maggie, Motorola, Surf Excel, Kisan Jam. ठीक है. I have also made a chart for you. Nouns, naming words, common and proper. Nouns are further classified into collective nouns also, but here we are doing the differentiation between the two, common and proper. So that's why I have covered only two in this class. Person. Okay, see, first of all, see the left headings. पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग क्या होते हैं? ये आपके नाउन्स होते हैं. और उसमें हम पता कैसे करेंगे कि ये कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है?
अगर गर्ल है, गर्ल कोई भी गर्ल हो सकती है, सो इट्स अ कॉमन नाउन. स्वाति, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक स्वाति. स्वाति जिसका नाम है, उस लड़की के बारे में हम बात करें. इट इज़ द नेम ऑफ द गर्ल, स्वाति. बॉय, कुड बी एनी बॉय. सूरज, boy whose name is Suraj, is a proper noun. Teacher, could be any teacher. We are talking about teacher Mrs. Arora. एक स्पेसिफिक, हम पता है हम किस टीचर के बारे में बात करें. What is the name of the teacher? Mrs. Arora. Priest, priest कौन होते हैं? जो चर्च में होते हैं ना, फादर, उनको हम प्रीस्ट बोलते हैं. सारे चर्च में, किसी भी चर्च में जाओ, जो फादर होते हैं उनको हम प्रीस्ट बोलते हैं. ठीक है, जो हमें प्रीच करते हैं, टीचिंग्स देते हैं, बताते हैं, नई चीज़ें सिखाते हैं, गॉड को किस तरीके से हमें फॉलो करना है वो बताते हैं. उसमें एक फादर का हमने नाम दे दिया, फादर एंथनी. दैट इज़ द नेम ऑफ द प्रीस्ट. सो ये आपका क्या हो गया? प्रॉपर नाउन. डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर. ना नेम ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर शर्मा. सेम फॉर प्लेस. स्कूल, कुड बी एनी स्कूल. आर्मी पब्लिक स्कूल, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर स्कूल, दैट इज आर्मी पब्लिक स्कूल. सो दिस इज द नेम ऑफ द स्कूल. सी, आई हैव रिटन A also capital, public P capital, school S capital. While writing in your notice, application and all, every time you people do this mistake. आप हमेशा स्कूल के नाम में आर्मी का ए कैपिटल करोगे, बाकी सब स्मॉल लिख देते हो. ये लिखने का तरीका ये होता है प्रॉपर नाउन का, कि आप हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखते हो, जो आपका प्रॉपर नाउन है वो. पार्क, चिल्ड्रंस पार्क. इलाहाबाद में पार्क है ना, चिल्ड्रंस पार्क, प्रयागराज में. आई हैव नेम्ड दैट पार्क. सिटी, यू स्टे इन प्रयागराज. अर्लियर इट वाज इलाहाबाद, नाउ इट इज़ प्रयागराज. सो आपकी सिटी का ही नाम लिख दिया. कंट्री, हमारी कंट्री का नाम. इंडिया. रेस्टोरेंट, जहाँ पे आप खाना खाने जाते हो. सागर रत्ना, ये एक रेस्टोरेंट का नाम है. राइट. move ahead, sorry. Name of the animals. Cat, suppose you have a pet cat and its name is Cole. Dog, Jack. Bird, Shilu. Horse, Basha. So you can have these, right? Maybe you don't have a pet horse, but जो horse race में दौड़ते हैं उनके owners होते हैं, वो अपने स्टेबल में उनको रखते हैं और उनके सबके हॉर्सेस के नाम रखते हैं. ठीक है, तो हॉर्स, एनी एनिमल. अदरवाइज ऑल्सो कोई स्टोरी है, अगर आपके पास पेट है नहीं है, अदरवाइज आपने कोई स्टोरी लिखी है, उसमें आप अपने कैरेक्टर्स को नाम दे सकते हैं, एनिमल्स का नेम स्टोरी में दे सकते हैं. तो देयर वाज अ हॉर्स नेम्ड बाशा, देयर वाज अ कैट नेम्ड कोल. और भी एनिमल्स हो सकते हैं, सिर्फ यही नहीं. So these are just an example, just few examples, okay children? Now let's move ahead. Thing. Book, name of the book, Alice in the Wonderland. अभी ज़रूरी नहीं है कि बुक आपकी होली बुक्स का ही नाम होगा. It can be name of any book. Okay, so Alice in the Wonderland. Car, Honda City. कार का नाम, कंपनी का नाम बताया. कौन सी कार? कार को तो कोई भी हो सकती है, मारुति की कार, हुंडई की कार, होंडा की कार, BMW, मर्सिडीज़, कोई भी कार हो सकती है. बट हम बात किसके बारे में सेंटेंस में आया? होंडा सिटी. तो होंडा सिटी आपकी प्रॉपर नाउन हुआ. और अगर कार है, होंडा सिटी इज़ अ गुड कार, सो कार आपका क्या होगा? कॉमन नाउन. पोम, The Wind. Poem can be any poem. It can be any. The Wind, आप जो पोएम आपने पढ़ी थी आप उसके बारे में बात कर रहे हो. The Wind. Chocolate, could be any chocolate. Name of the chocolate? Dairy Milk. So I hope the common nouns and proper nouns are clear. Okay. So now you have to do this exercise on your own. Okay. I hope it is clear.